Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. I'll be taking your legal studies for class 12. All right. So let us begin. इस ये part 3 of unit 4 which is human rights in India है. तो हम part 3 पढ़ते हैं. Let us begin. All right. Part 3 में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 21. वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी तरफ से लिख लो. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आगे जाकर लॉ करो नहीं करो अभी पढ़ रहे हो. आर्टिकल 21 हर जगह आएगा. आर्टिकल 21 कहता है नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट? नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. अब procedure established by law क्या है? Procedure established by law तो हम पढ़ ही लेंगे, थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है. बट आर्टिकल 21 क्या कहता है कि कोई भी अपनी लाइफ से डिप्राइव नहीं होना चाहिए, अपनी इसको लिबर्टी होनी चाहिए, इसको फ्रीडम होनी चाहिए. खाना, राइट टू फूड, राइट टू स्लीप, all of this is covered under what? Right to life and personal liberty. आपको पता है रामलीला मैदान में ना कुछ लोगों they were sleeping basically, वो लोग सो रहे थे और उनके ऊपर ना लाठी चार्ज कर दिया गया था. तो आपको पता है जो लाठी चार्ज कर दिया गया था ना वो कोर्ट तक पहुंची थी बात that they have right to sleep and nobody can obstruct this right and therefore this is a fundamental right. तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक मूव हुई थी. ऑलराइट, ये पर्टिकुलर एक केस लॉ है. विल नॉट गेट इनटू द केस लॉ, बट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि राइट टू लाइफ ये है. खाना, यू हैव राइट टू ईट, राइट टू बी एजुकेशन तो हम पढ़ ही लेंगे. 21 आर्टिकल 21 ए कवर करता है राइट टू एजुकेशन, बट राइट टू फूड है या फिर बेसिक फंडामेंटल राइट जो है हमारा वो राइट टू लाइफ है. उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड ये सब चीजें कवर होती हैं. तो चलो थोड़ा लेंथ में पढ़ते हैं. This article is most fundamental. बहुत ज्यादा fundamental ये है, बहुत ज्यादा basic है. Why? Because food is something that is a necessity that we require. Food, shelter, ये सब चीजें right to life में आती हैं. Alright? ये बहुत expensive है, expand कर रहा है बहुत चीजों को and it covers many other rights as well. Right to food अलग से नहीं है, right to life में covered है पर. Alright? It is available to both citizens. सारे जो rights हैं वो both citizens and non-citizens को available नहीं है. For instance, Article 19 है. Article 19 also is available to both citizens and non-citizens, but you'll have to check upon that. But I want to tell you, it is not all the fundamental rights are not available to everyone. Constitutional remedies है, it's not available to both citizens and non-citizens. But we'll have to check upon this. All we know is Article 21 covers both citizens as well as non-citizens. देखो इसमें ये लिखा हुआ है. The meaning of right to life includes human dignity. I have a right to human dignity. मुझे कोई भी ऐसे गलत ट्रीट नहीं कर सकता है. What this is covered under right to life. Right to basic requirements. Food मैंने बताया, food, shelter ये सब चीजें. Right to participate in activities. Yes, I have right to expression also. Right to tradition, I can follow my tradition, whatever heritage I want to follow, क्या culture है मेरा, and so on. This is all covered under what? This is all covered under right to life. So right to life is very expensive. Expansive बोलेंगे इसको. क्यों? क्योंकि ये बहुत expand कर रहा है और बहुत चीजों को ये cover कर रहा है. Personal liberty क्या है? Personal liberty means various rights that provides for the personal liberty, मतलब freedom of the person. Everyone has right to do anything of his or her will freely with freedom. पूरी freedom होनी चाहिए. The meaning of right to life and personal liberty is broad. काफी broad मतलब है and it embraces many aspects. बहुत सारे aspects हैं. कुछ aspects के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ aspects के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. See the table below. All right, ये सब हम NCERT कवर कर रहे हैं. NCERT के ऊपर ही हमें फोकस करना है. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या है? ह्यूमन डिग्निटी है, हमने पढ़ लिया. ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए. बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, खाना, मकान, ये सब चीजें. एंगेजिंग इन एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेशन, ट्रेडिशन का हेरिटेज, कल्चर, ये सब तो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं. प्रिवेसी है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है. इज राइट टू लाइफ ओनली. एक सही जीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हम जो सांस ले रहे हैं साफ हवा तो हो, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो हो, फिर लाइवलीहुड जैसे मैंने बताया था आपको, अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, किसी के साथ कुछ गलत ना किया जाए,
अगेंस्ट सॉलिटरी कंफाइनमेंट। सॉलिटरी कंफाइनमेंट क्या होती है? जो तुम्हें बाउंडेड बाय 4 वॉल्स कर दिया जाता है, यू कैन नॉट मूव हियर एंड देयर, दिस इज सॉलिटरी कंफाइनमेंट। फिर लीगल एड मिलनी चाहिए लोगों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्ट जाना, लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लीगल एड मिलनी चाहिए। एक स्पीडी ट्रायल भी मिलना चाहिए जिससे उनको जस्टिस मिल सके। अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन इन कैपिटल, यू नो पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट में ऐसा ना हो कि लटके हुए हैं लड़के लड़कियां जो भी यू नो एक्यूज्ड है इन कैपिटल पनिशमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फटाफट से अगर उन्होंने गलत किया तो उनको कैपिटल पनिशमेंट दे देनी चाहिए। अगेंस्ट कस्टडियल वायलेंस, उनको कस्टडी में वायलेंस ना हो, उनके साथ गलत ना किया जाए। शेल्टर मिले, हेल्थ केयर मिले, मेडिकल प्रोविजंस मिले। अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ऐसा ना हो उनको उनसे काम कराया जाए, उन्हें पैसे ना दिए जाए। या फिर अगेंस्ट क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए जो ब्रूटल हो, जो क्रूअल हो, ऐसी इन नेचर हो। ऑलराइट, ये बात समझ आई? यहाँ देखो, the second part of this article describe how one's right to life and liberty is taken away, कैसे ली जाती है, how is it taken away? Alright, तो देखो, a person can be deprived of his right to life only by procedure established by law. See, this is not indefinite. Right to life and personal liberty is not indefinite. There are definitely some restrictions, like I said, procedure established by law, जैसे हमने पढ़ा है, पढ़ेंगे अभी। हमने एक लाइन रीड करी थी, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसका मैंने बोला मैं अभी आपको इसका मतलब समझाऊंगी थोड़ा लेंथ में। ऑलराइट, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? देखो, दिस मीन्स दैट एनी लॉ दैट लिमिट्स और टेक्स अवे वन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मस्ट कंटेन अ प्रोसीजर। ऐसा एक प्रोसीजर होना चाहिए विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय whom? प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, written law, all right, that is fair, fair है, just है, arbitrary नहीं है। just, fair, reasonable है, arbitrary नहीं है, मतलब अपने मर्जी से कुछ नहीं चल रहा है, on the people's discretion नहीं है। something that has been prescribed by law is the procedure established by law. something that is fair, not arbitrary, reasonable क्या आता है? procedure established by law आता है। for example, the Indian Penal Code prescribes death penalty for certain crimes. This involves established procedures like, अब आपको पता है IPC, which is Indian Penal Code 1860 Act जो है हमारा, वो हर केस में नहीं कहता है कि you know you have to give this capital punishment, हर केस में नहीं मिल सकती है। तो अब इसके क्या exceptions है, क्या procedure established by law है, वो देखो। Death penalty is awarded only in the rarest of rare cases. ऑलराइट, ये बच्चन का केस है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो। बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का मतलब क्या होता है? सर्कमस्टेंसेस आर सच, सिचुएशन इज सच दैट कैपिटल पनिशमेंट इज ओनली अवॉर्डेड टू पीपल जिन्होंने सर्टेन क्राइम किया है, और सर्टेन लेंथ में, सर्टेन डेप्थ में जाकर किया है। हर केस में, हर मर्डर का केस को कभी भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती है। देयरफॉर बच्चन का केस यही कहता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, डेथ पेनल्टी मिलेगी। देयर शुड नॉट बी डिले, डिले नहीं होना चाहिए इन एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग मतलब प्रिजनर को डेथ पेनल्टी देने में, वेटिंग इन द डेथ रो, जिसकी बारी आने वाली है उसको दे देनी चाहिए, बहुत ज्यादा वेट नहीं करानी चाहिए उसके अपने। दिस इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सी, लॉ ने बहुत कुछ सोचकर ऐसा करा हुआ है। आपको पता है, जब तक यू नो किसी को डेथ पेनल्टी नहीं मिल जाती, वो इंसान जिंदा है, वो मेंटली तो यू नो ही इज गेटिंग क्रेजी, लाइक मैं मरने वाला हूँ कुछ टाइम में, मुझे दे विल हैंग मी टिल डेथ। ये सब चीजें अगर आपको पता हो, आप तो जिंदा ही मर जाओगे ना। इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा वेट नहीं करानी चाहिए, और जितना ज्यादा क्रिमिनल बाहर रहेगा उतना ही विक्टिम जिसको नुकसान हुआ है उसकी जान को भी खतरा होता है। वो अपने यू नो दे कैन अपॉइंट सम अदर पर्सन की जो विक्टिम है उसको जान से मार दिया जाए, so on and so forth. All right, तो जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है should be fair, it has to be fair, it has to be reasonable, arbitrary नहीं होना चाहिए, and this procedure by established by law is followed in these only cases, सिर्फ इन केसेस में right to life and personal liberty नहीं है। फिर also Indian Penal Code, यहाँ पढ़ो, allows for appeal where wait period, अपील कर सकते हैं, बिल्कुल अपील का टाइम मिलता है अगर वेट पीरियड लॉन्गर है 5 ईयर से। देखो, अगर तुम्हें 5 ईयर तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, तुम्हें हैंड टिल डेथ नहीं किया गया है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉरवर्ड एंड यू कैन
अपील, तुम अपील कर सकते हो कोर्ट के सामने. ऑफ कोर्स इट इज अ डिफरेंट डिबेट वेदर डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश्ड. डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये सब्जेक्टिव है. इट डिपेंड्स अपॉन यू. मे बी योर व्यूज आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइन. मैं कहूंगी कि डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, आप कहोगे डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए. इनफैक्ट इनको रिहैब सेंटर्स भेजना चाहिए. सो ऑन एंड सो फॉर. दिस डिस्कशन इज वेरी वेरी लेंथी व्हिच वी नीड नॉट गो इनटू. ऑलराइट, तो ये राइट टू एजुकेशन की बात हुई है. राइट टू एजुकेशन पहले डीपीएसपी था, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. वो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में पढ़ाने वाली हूँ. बट अब राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, इसमें यही बताया हुआ है. 21, देखो आपकी बुक में कहीं लिखा है नहीं लिखा, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए. 86th अमेंडमेंट 2002 में 21A को इंसर्ट किया गया था, which is right to education. DPSP से हटके ही फंडामेंटल राइट बन गया था. स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री, देख लो फ्री है एजुकेशन एंड कंपलसरी, बट एज ग्रुप होना चाहिए 6 to 14 years. हर एक को फ्री नहीं है, हायर एजुकेशन फ्री नहीं है. टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 years. देखो यहाँ आ गया. इन सच मैनर एज द स्टेट में, स्टेट की देखो एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ विच लिस्ट. 3 लिस्ट पढ़ी थी ना हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये स्टेट का मैटर है. क्या? एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ स्टेट. बाय लॉ डिटरमाइन. This article provides right to education to all between the age of 6 and 14 and obligates whom? It does not obligate the center to implement, rather states to implement. So it is upon the discretion of the state कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं regarding the education, regarding the formulation of procedures, policies of education. फिर prior to 2002 से पहले अमेंडमेंट कब आया था? 86th अमेंडमेंट 2002 में आया था. The Indian Constitution considered elementary education 6 to 14 years में as a policy goal in DPSP. DPSP था जैसे मैंने बताया. Briefly put, DPSP is not enforceable. आप कोर्ट में जाकर उसको enforce नहीं करा सकते. अगर 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है और आप कह दो जाकर कि my child is not getting free education, they will not even listen to you. But now that it is a fundamental right, अब 2002 के बाद से अगर 6 to 14 एज ग्रुप वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है, स्टेट के, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नमेंट स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो अपना फंडामेंटल राइट कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसको एनफोर्स करा सकते हो. ऑलराइट, फिर DPSP are not enforceable, like I told you. ये क्या है? DPSP are just aspirational goals. As to you have to achieve them. They are benchmarks हैं. You can achieve them. If you achieve them, it's good for you. It's just like that. To be achieved over a period of time. In 1992-93 में, however, the Supreme Court affirmed that depriving their education to deprive one's right to life. पहले भी ये बात हो चुकी है. अगर तुम एजुकेशन नहीं दे रहे हो, then you're depriving their one's right to life. This meant that elementary education was raised. It was raised to the status of a fundamental right. क्यों fundamental right enforceable है? From that of a DPSP, and hence they are enforceable. They are now enforceable. Fundamental right बन चुका है. Accordingly, in 2002, Article 21A provided right to elementary education was created as a fundamental right. यही बताया हुआ है. However, implementing this right requires किसकी फाइनेंशियल? जब स्टेट की ड्यूटी है तो स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल बजट के ऊपर बात करेगा. फाइनेंशियल एंड बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ एनॉर्मस अमाउंट. एनॉर्मस मतलब बिग अमाउंट, जायंट अमाउंट टू मीट द डिमांड ऑफ द हाई इलिटरेसी रेट. इट इज अपॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट, वो कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहता है अपनी लिटरेसी के ऊपर. ऑलराइट, which so far has been inadequate. अभी बहुत ज्यादा inadequate है. Why? States के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर सके. Alright, protection against arrest and detention. आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं. आर्टिकल 21 यही कंप्लीट हो गया है. आर्टिकल 22 को देख लेते हैं. आर्टिकल 22 क्या कहते हैं? यू हैव राइट, प्रोटेक्ट हो सकते हो अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट यू हैव सर्टेन राइट्स. It provides safeguards against arrest and detention. And how? कैसे? तुम कैसे अरेस्ट होने से बच सकते हो? How can you be, saved from detention? So let us read this. यहाँ देखो,
नो वन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी, कोई भी किसी को भी डिटेन नहीं करा जा सकता है विदाउट प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स, कि तुमने मुझे क्यों अरेस्ट किया है ये बताए बिना आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो। द अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन हैज राइट टू कंसल्ट, वो कंसल्ट कर सकता है एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। आपको पता है जैसे कोई इंसान को बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया जाता है, ही हैज डेफिनेटली राइट कि वो अपना एक लॉयर अपॉइंट कर सके, एक लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट कर सके जो उसको डिफेंड करे, जो उससे कंसल्ट करे विद इन सर्टेन टाइम पीरियड लिखा हुआ है। देखो, a person who is arrested and detained in custody should be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours, 24 घंटे में अगर आप इसको वो नहीं दे रहे हो, चांस नहीं दे रहे हो टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, यू नो, कि उसका लॉयर आकर उसको रिप्रेजेंट करे, उसकी बात रखे, अगर आप 24 आवर्स में उसको नहीं दे रहे हो, then this person will not be put behind the bars, उसको बेल ग्रांट हो जाती है। बट इसमें एक कंडीशन है, ट्रैवल टाइम इज नॉट काउंटेड। अगर तुम्हें ट्रैवल करने में बहुत दूर से दूर कई 12 घंटे तो ट्रैवल करने में ही लग गए, तो ये ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता है टुवर्ड्स द 24 आवर का जो टाइम फ्रेम है, उसमें ये घंटे इंक्लूड नहीं होते हैं जो तुम्हें ट्रैवल करने में लगे हैं। फिर बियॉन्ड 24 आवर्स डिटेन नहीं किया जा सकता है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। आपको पता है एफआईआर जब फाइल हो जाता है, पूरा रिपोर्ट बन जाती है, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है। इसमें ये लिखा हुआ है कोई भी इंसान बियॉन्ड 24 आवर्स पुट बिहाइंड द बार्स नहीं रह सकता है, जेल में नहीं रह सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी या फिर मैजिस्ट्रेट, जो भी वहां पे अथॉरिटी है, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बिना ऐसे आप किसी को भी बिहाइंड द बार्स 24 आवर्स के लिए पुट नहीं कर सकते। द अबव सेफगार्ड डू नॉट अप्लाई टू अ पर्सन फ्रॉम अ एनिमी कंट्री। एनिमी कंट्री कौन सी होती है? जिसके साथ हम एट वॉर हैं, जिसके साथ हमारी रिलेशंस ठीक नहीं है, या एट वॉर ही बोलते हैं। एट वॉर फॉर इंस्टेंस अभी हम चाइना के गुड्स बाइकआउट कर रहे हैं, सो दिस कैन बी कॉल्ड यू नो एनिमी कंट्री, की हम लोग वी आर नॉट इन अ वॉर, फिजिकल वॉर पे नहीं है, बट वी आर स्टिल बाइकआउटिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो एनिमी कंट्री यही होती है। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई रहती है, वो भी एनिमी कंट्री है। तो ये बोला है कि ये जो सेफगार्ड्स है डिटेंशन के, दिस डज नॉट अप्लाई टू एनिमी कंट्री। Also, they do not apply to persons arrested or detained under preventive detention law. Preventive detention law वो कहता है कोई इंसान जो हमें लगे कि नुकसान दे सकता है कॉमन सोसाइटी को, मर्डर कर सकता है, या फिर कोई बिल्कुल पागल हो गया है कि उसका दिमाग इतना सनक गया है, तो उसको ना प्रिवेंटिव डिटेंशन यही होता है कि उसको पहले ही डिटेन कर देते हैं, मतलब उसको बिहाइंड द बार्स पुट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि ये इंसान नुकसान पहुंचा सकता है, ये इंसान कोई क्राइम कमिट कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि चलते फिरते लोग को आप ऐसे बिहाइंड द बार्स पुट कर दो, बट बहुत सारी चीज देखकर, बहुत सारी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस देखकर ही उसको बिहाइंड द बार्स पुट कर सकते हैं। जनरली प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अलाउ फॉर डिटेनिंग पर्सन्स ऑन सस्पिशन। सस्पिशन क्या होता है? डाउट। आई एम सस्पिशियस कि ये इंसान क्राइम कमिट कर सकता है, तो सस्पिशन पे उस इंसान को बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया। Who have not been found guilty, अभी तक ये नहीं पता उसने कुछ गलत किया नहीं है, बट हमें लग रहा है कि ये कर सकता है, इसने किया है, तो उसको behind the bars put कर दिया है। He has not been found guilty of the crime, but their release may be detrimental. Detrimental मतलब नुकसान दे सकता है to society, like I told you, like they may commit more crimes. वो और क्राइम कमिट कर सकता है, और मर्डर कर सकता है, और रेप कर सकता है। If they are released, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए, मतलब खुले दे दिया जाए, फ्रीडम दे दी जाए, और अफेक्ट एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को वो अफेक्ट कर सकता है, मतलब जो एविडेंसेस है वो टैम्पर कर सकता है, गलत कर सकता है। फिर बाय स्टेट और दैट मेंटली इल, मैंने बताया ना, दिमाग से पागल हो चुका है, सनक चुका है, बिल्कुल इल हो चुका है, और एंड सो ऑन। दीज आर द केसेस दैट आर मेंशन्ड इन योर बुक्स। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ समझ आया क्या कहता है? वो पहले ही किसी इंसान को जो अभी गिल्टी नहीं हुआ है उसको बिहाइंड द बार्स पुट कर देता है। However, preventive detention laws can be misused. ये मिसयूज हो सकते हैं। कोई इंसान किसी को भी जेल में डाल सकता है, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर ये कहकर कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, बट नो, वो अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहा है और उसकी कोई राइवलरी है तो उसको कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है उस सेंस में, रिजल्टिंग इन वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऐसे तो ह्यूमन राइट का राइट वायलेट हो रहा है ना, मुझे बिना किसी चीज के मुझे बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया जाए तो मेरा तो राइट टू लाइफ ब्रेक हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 का एक्ट है. इट एनेबल्ड इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलरली नोन एज इमरजेंसी लगी थी 1971 की. इमरजेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें क्या हुआ था, मेनी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वर डिटेन्ड. मेनी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो उस टाइम पार्टी थी उसके जो ओपोनेंट्स थे, मतलब जो ऑपोजिशन थी उसके पॉलिटिकल मेंबर्स को बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया गया था. दे वर डिटेन्ड विदाउट सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन. जो हमने अभी 4 पॉइंट्स पढ़े, 24 आवर्स वाला पढ़ा पॉइंट, एंड दैट दे कैन नॉट बी डिटेन ऑन एनी ग्राउंड. मतलब कोई ग्राउंड प्रोवाइड होना चाहिए, कोई भी ऐसा ये नहीं कि यू कैन जस्ट टेक देम एंड नॉट प्रोवाइड देम एनी ग्राउंड. तो ये सब चीजें उनको नहीं मिली थी उस टाइम पे. दे वर नॉट गिवन दिस राइट. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, किसी भी छोटे बच्चे को बेच देना या फिर ट्रैफिकिंग करना ह्यूमन बीइंग्स की इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, मैंने बताया ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स या फोर्स्ड लेबर. फोर्स्ड लेबर क्या होती है, काम कराना, उन्होंने पैसे मत देना. ऑलराइट, फिर आर्टिकल 23 कहता है इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड फोर्स्ड लेबर. बेगार, फोर्स्ड लेबर यही होती है जहां उनको पैसे नहीं दिया जाता और उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है. फिर इसके अंदर एक हेडिंग आती है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. इनको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं कर सकते चिल्ड्रन को. वैसे तो चाइल्ड लेबर इटसेल्फ बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स प्रोहिबिटेड है. चाइल्ड लेबर भी एक फंडामेंटल राइट है दैट यू हैव राइट टू लाइफ एंड यू कैन नॉट वर्क अंडर द if you are under the age of 14 years. All right, article 24 क्या कहता है, prohibits employment of children below the age of 14 years particularly in factories, mining. पता है आपको factories, mining में काम करके बच्चों की हेल्थ को इतना नुकसान होता है, उसका स्मोक वगैरह अंदर जाता है. ऑल्सो नॉट ओनली स्मोक एंड ऑल, यू ऑल्सो गेट ब्लाइंड. अगर तुम ग्लास फैक्ट्री में काम करो तो बहुत ज्यादा रेपरकशंस है. एंड अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, यू कैन नॉट एम्प्लॉय अ चाइल्ड. आर्टिकल 24 यही स्टेट करता है. फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में. इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ. देखो, एक एक्ट होना चाहिए, वो जो एक्ट किया है उसका मीन्स होना चाहिए, उसके लिए साथ साथ एक पर्पस भी होना चाहिए, तभी ट्रैफिकिंग होती है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स ये सब मीन्स होने चाहिए. और फोर्स लेबर हो रहा है बट ये मीन्स नहीं है, इन मीन्स के थ्रू नहीं हो रहा है, तो ये ट्रैफिकिंग नहीं होगी. इन तीनों में से एक एक चीज जरूर होनी चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रैफिकिंग. फॉर इंस्टेंस देयर इज ट्रांसफर और कोअर्जन. कोअर्जन मतलब कि जबरदस्ती की जा रही है, गोली लगा के थ्रेटन कर रहे हैं कि तुम चलो, एंड पर्पस क्या है, प्रोस्टिट्यूशन है, फीमेल का एक्सप्लोरेशन, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन, so on and so forth. It can be any such case, but to constitute trafficking there has to be an act, there has to be some means में क्या है, coercion, fraud, ये सब चीजें आएंगी. देखो, threat है, threat और use of force, coercion, abduction मतलब kidnapping है, fraud है, ये सब चीजें means होनी चाहिए. and there shall be a purpose के लिए ये काम किया गया है, then it will constitute trafficking. इस टेबल का और कुछ मतलब नहीं है. Stop child trafficking, look at this child. बच्चों को बेच दिया जाता है, लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है. This is not right. They get money in return और इनका चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं आप. यू हैव राइट टू कंसाइंस मतलब प्रैक्टिस करना, एंड फ्रीडम, फ्री प्रोफेशन. You can practice such and such religion and you can propagate, मतलब you can talk about you can profess it also. What is this? This is Article 25. Article 25 अच्छा article है, काफी important है. Article 25 क्या कहता है? You have freedom to conscience, you have free profession, तुम practice कर सकते हो. You can practice it, you can propagate it, you can talk about it. उसकी आरती गा सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, ये सब चीजें फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आती हैं. ऑलराइट, अंडर आर्टिकल 25 ऑल पर्संस हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड टू फ्रीडम ऑफ टू प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन. कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब टू चूज विच रिलीजन इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर. जो तुम्हारा मन करता है यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर वन. क्या मॉरली ठीक है. यू हैव राइट टू प्रोफेस,
प्रोफेस मतलब अपना बताना, that I affirm in, to affirm in one's faith, to confirm that yes I have faith in such and such, to practice this religion, उसके सारे rituals practice करना, practice में वो आ जाएगा, and propagate, propagate मतलब अपनी to spread one's faith, alright, propagation ये होता है. Religion as long as their acts do not threaten, वो threaten ना करे public order को, मतलब public welfare के लिए खराब ना हो, public policy को follow करे, public order के लिए गलत ना हो. अगर आप रात को कह दो ये बात, sermons गाओ बड़े जोर जोर से, और सारे जो गली के लोग हैं, तुम्हारी कॉलोनी के, तुम्हारी सोसाइटी के लोग हैं, वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो जाए, दे कांट स्लीप, और जो ओल्ड एज पीपल हैं वो लोग को दिक्कत हो रही है, नॉइज पोल्यूशन इतना है, सो दिस इज नॉट डन. ऑलराइट, तो ऐसे कहते हैं यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स भी ठीक नहीं है. यूज ऑफ, अगर तुम कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोपगेट कर रहे हो, यू डू नॉट नीड लाउड स्पीकर्स फॉर दैट मैटर. तो यही कहा गया है, एक केस लॉ था इसका, उसमें यही कहा गया था, यू डोंट नीड लाउड स्पीकर्स की जरूरत नहीं होती है अपना प्रोफेशन, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, अपना रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये पढ़ लो, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन नहीं कर रहे, मोरालिटी, हेल्थ, कोई भी मोरल्स की अगर बात हो रही है तो उसके लिए गलत नहीं है, हेल्थ के लिए गलत नहीं है. हेल्थ के लिए जैसे नॉइज पोल्यूशन है, इट कैन अफेक्ट ओल्ड एज पेशेंट्स, डेफिनेटली इट कैन. फॉर एग्जाम्पल ऑन द इशू कंसर्निंग यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, देखो लाउड स्पीकर्स की बात यही आ गई है. फॉर रिलीजियस पर्पसेस, Supreme Court has stated that no religion prescribed that prayers should be performed. कोई भी religion ऐसा नहीं कहता है that it should only be performed by disturbing the peace. किसी की शांति को disturb करके कोई भी ऐसा religion नहीं कहता है कि तुम prayers जोर-जोर से गाओ लाउड स्पीकर पे. Nor does it preach, nor does it say that it should be done to voice amplifiers, जो बड़ी जोर-जोर से आवाजें आने लग जाती हैं, तुम हल्का बोलते हो वो स्पीकर्स पे जोर-जोर से आती है, वॉइस एम्पलीफायर या बीटिंग ऑफ ड्रम्स जोर-जोर से चलाना. This is not covered under freedom of religion. In the name of religion, nobody can be permitted to add to noise pollution like I talked about, or violate noise pollution norms. Even if there is a religious practice to use voice amplifiers, अगर आपको यूज करने भी हैं, it should not affect the rights of other person. किसी और का राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, ये सब अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग दैट ऑफ बीइंग नॉट डिस्टर्ब्ड इन देयर एक्टिविटीज. जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड. नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 ईयर शुड बी फॉलोड. ये रूल्स का नाम ऐसे मेंशन किया हुआ है कि नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स हैं, 2000 ईयर में आए थे, दी शुड बी followed. All right. Also, state may regulate or restrict economic, financial, political, and other secular activities that are associated with a religious practice. देखो, exceptions हर जगह होते हैं, which means कुछ चीजें law prohibit कर सकती हैं कि तुम इतना invest नहीं कर सकते, economical, financial, political या कोई भी ऐसी secular activity definitely law prohibit कर सकता है. State can also provide social welfare. State social welfare भी provide कर सकता है. And reforms, किन को, हिंदू को, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इस पे स्टेट कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट. स्टेट कैन इन्वेस्ट नहीं, डोनेट कर सकता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कर सकता है, as well as the state can throw open their religious institutions by state भी खुल सकते हैं, like temple देना, सब क्लासेस को एक टेम्पल दे देना, या फिर all sections of that society, of that religious society को एक टेम्पल बना कर दे देना. State can definitely do this. The wearing and carrying of kirpans is a part of profession of Sikh religion. हम लोग देखते हैं वो kirpans पहनते हैं, तो ये किसका पार्ट है? Sikh religion का पार्ट है. And these do not threaten, ना तो उसमें पब्लिक ऑर्डर थ्रेटन हो रहा है, ना ही मोरालिटी थ्रेटन हो रही है, ना ही हेल्थ थ्रेटन हो रही है. ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत नहीं है. Therefore, this is particularly fine. ये बस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. फिर फ्रीडम, यू हैव फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो. आर्टिकल 26 यही कहता है दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन इंक्लूडिंग देयर सबसेक्शंस और सबसेक्ट्स टू ऑल दीज पीपल, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके नीचे जो रह रहे हैं, ऊपर जो रह रहे हैं, एनीवन, all
ऑल रिलीजियस डिनोमिनेशंस, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, रिलीजियस सोसाइटीज हैं, इंक्लूडिंग देयर सबसेक्शंस, जो भी एवरीवन, एनीवन, दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन institutions. They can open institutions, maintain institutions for religious and charitable purposes. Charity के लिए, religious purposes के लिए they can open it. They can manage their own matters of religious affairs. They have right to do so. They can own and acquire a movable vehicle or immovable vehicle. ये काम भी कर सकते हैं. ये किसके अंदर आता है? ये सब आता है religious affairs के अंदर. All right. They can also administer such property in accordance with law. They can own this property, but this has to be in accordance with law. Law की, law को ये बात पता होनी चाहिए. All right. These rights are conditional, मतलब इन पे condition लगी होती है. They should not endanger what all? Public order, morality, health, ये हमें पता है. Freedom as to payment of taxes. अगर taxes की बात करें for promotion of any religion activity, Article 27 prohibit करता है. Prohibits forcing anyone. You don't have, you will not be forced. It is upon your discretion if you want to pay any taxes on revenues that are used in the payment of expenses. अगर तुम टैक्स भरना चाहते हो तो भर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है. For the promotion or maintenance of any religion or any section, you cannot be forced. It is upon your discretion. For example, donations जो होती हैं in temples are used for upkeep of the temple. उनको टैक्स नहीं किया जाता है. उनके ऊपर कोई रूल नहीं है that they will not be taxed. All right. Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship. अगर इसकी बात करें in certain educational institutions, तो Article 28 यही बात करता है. It prohibits regional instructions. Regional instructions का मतलब क्या होता है? For example, government run schools, जैसे सैनिक schools होते हैं या केंद्र विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, ये सब में ये they cannot impose that you have to follow this religion, या फिर तुम्हें इसके sermons गाने, इसके prayers गाने हैं. You cannot impart religious instructions. तुम religious instructions students को नहीं दे सकते हो. केंद्र विद्यालय होते हैं या फिर ये सब सैनिक schools होते हैं, ये सब गवर्नमेंट के होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के. However, some educational institutions are exempted. Exemption मिलती है कुछ को जो सिर्फ किसी particular religion नहीं बनाए हुए हैं, which are administered by state but are established by endowment or trusts. वो administer तो state कर रहा है, but own कौन कर रहा है? Endowment या कोई trust उसको own कर रहा है. That require religious instruction in such educational institutions. Why? Because it also, अगर वो administer state कर रहा है, but own कौन कर रहा है उसे? Own तो से endowment या कोई trust कर रही है, तो अगर वो particular से कोई religion को cover कर रही है, तो you can impart religious instruction in that matter. तो इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है. Further, state recognized और state aided education institutions cannot force, कोई force नहीं कर सकता है जहाँ पे state का aid हो या state recognize कर रही हो to take part in any religious instructions or to attend any of them. Thus, these provisions make India a secular state. India secular है, मतलब it does not consider one religion as its own religion. ऐसा कुछ नहीं कहता है कि हिंदू ही सबको हिंदुइज्म फॉलो करना है या फिर सबको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है या सबको मुस्लिम बनना है. इंडिया हर एक रिलीजन को सही मानता है. इट इज अ सेक्युलर स्टेट. व्हाई इंडिया सेक्युलर स्टेट? इसी वजह से है बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर ओनली वन एज ऑल, वन रिलीजन एज ऑल ऑफ द रिलीजन. फिर राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है. ये राइट टू नहीं है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है. इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात हो रखी है. आर्टिकल 29 कहता है इट प्रोवाइड्स माइनॉरिटी सेक्शंस ऑफ सिटीजंस हु हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, कल्चर अलग है, दे हैव राइट टू कंजर्व द सेम. इसका मतलब ये नहीं अगर आपकी अगर आप माइनॉरिटी भी हो इस केस में कि आपके कल्चर बहुत सारे लोग नहीं, आपके कल्चर के आपके हेरिटेज के बहुत सारे लोग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदलना पड़ेगा, आपकी लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा. नो, यू हैव राइट टू कंजर्व द सेम, बचा सकते हो. इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो मेंटेन होते हैं स्टेट से receiving aid out of state funds from denying admission. You cannot deny admissions on the grounds that you belong to certain religion. On the grounds of religion, you cannot deny any admission. Race, caste, language के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एडमिशन ना दो. But I want to tell you, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर कह दो कि इन्होंने मुझे एडमिशन मना कर दिया और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, you will not be granted any remedy. Why? Because the school is private.
ये सब चीजें एप्लीकेबल होती हैं ओनली इन द केस ऑफ स्टेट, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। ये बात समझ आई। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज, दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 क्या कहते हैं? इट प्रोवाइड्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, सब माइनॉरिटीज, या तो वो रिलीजन है पे बेस्ड है या फिर वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश, वो अपना राइट है उनके पास, वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑफ देयर चॉइस, विच एवर दे वांट, जो भी उनकी चॉइस है उसके बेसिस पे। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स स्टेट डिस्क्रिमिनेशन, नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हाइल ग्रांटिंग देम एड। किसी को भी ऐसे नहीं कह सकता है कि ये हिंदू का स्कूल है तो मैं इसको पैसे दूंगा, या फिर क्रिश्चियन का स्कूल है तो इसको मिलेंगे, हिंदू को नहीं मिलेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यू कैन नॉट डू दिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, यू कैन नॉट बी पार्शियल, एक बायस्ड नहीं हो सकते हो। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा लास्ट राइट है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 कहता है यू हैव राइट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, एनफोर्स कर सकते हैं। अग्रीव्ड वंस, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका फंडामेंटल राइट ब्रेक हुआ है, आर द अग्रीव्ड वंस whose fundamental rights have been violated or denied, वो पिटिशन के थ्रू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Unlike the matters of other cases, the cases of other matters where one has to exhaust remedies to lower courts, आपको सबसे पहले अगर आपका कुछ भी किसी ने भी कुछ आपको किसी चीज में भी केस करना है तो आप सीधा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो, आप पहले लोअर कोर्ट जाते हो, फिर अगर उसका डिसीजन ठीक नहीं लगता तो आप हायर कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट नहीं ठीक लगता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, बट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये बताया हुआ है इन मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेट जब होते हैं यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। सिमिलरली आर्टिकल 226 ऑथराइजेस हाई कोर्ट्स, आर्टिकल 226 भी ये कहता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट कहाँ पे? हाई कोर्ट में। ऑलराइट, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की बात हो रखी है, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, नहीं चेक किया है जाकर चेक कर सकते हो, ऑलरेडी पिछली वीडियोस देख लो। I'll tell you which part, कौन से पार्ट में है PIL के बारे में, बट आप जाकर चेक करो। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते आ रहे हो, PIL के बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बहुत ज्यादा यहाँ पे, बट एक बार देख लो। इसमें लिखा है इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ऐसे पैसा नहीं होता, उनके पास इतने मीन्स नहीं होते हैं अपना केस लड़ने के लिए, तो उनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसे बोनाफाइड केसेस लड़ते हैं लॉयर्स, क्यों? क्योंकि और लोग डिप्राइव्ड हैं, वो नहीं लड़ सकते, तो उनके बिहाफ पे कोई और जना उनके लिए पिटीशन फाइल करता है, लड़ता है, लिटिगेशन फाइट करता है। विच इज द प्रोसेस बाय विच लेटर्स रिटन टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा जाता है। कौन लिखता है? बाय पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, जो बहुत डिटर्मिन्ड है, पब्लिक स्पिरिटेड है, मतलब दे वांट टू हेल्प अदर पर्सन, और ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक आई टोल्ड यू, ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकते हैं। alleging fundamental rights violation, वो कहते हैं कि fundamental right का violation हुआ है। These are converted into petitions, petitions में convert होती है, these are called public interest litigation। फिर the author of the letter alleges violation of the weaker section, मैंने आपको बताया section कौन सा है, weaker section of the society है। Why? तभी तो वो लोग फाइट नहीं कर पा रहे, तभी तो कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन आकर उनके लिए लड़ रहा है। Of the Indian society who are unable to approach the court, they are unable to approach the court, they do not have the required resources, they include people in custody, या तो people in custody हैं जो लोग behind the bars हैं, या victims of public violence, police violence, जो पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, forced bonded labor, उनको काम करना पड़ रहा है, adequate पैसे नहीं मिल रहे, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं या बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, migrants हैं, contracted laborers हैं, child workers हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, दे आर इलिटरेट मोस्टली, वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको इतनी सब नॉलेज नहीं होती है। हॉकर्स हैं, जो पेडलर्स होते हैं, जो रेडी चलाते हैं, या पेंशनर्स हैं, उनको नहीं ठीक से पेंशन आ रही है, या फिर पेवमेंट ड्वेलर्स हैं जो साइड में बैठे होते हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं जो रूरल एरियाज में। कोर्ट्स कैन ऑल्सो एक्ट अपॉन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अलेजिंग फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। अगर न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट भी छप दी जाए तब भी उसको केस वॉट अप हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, देयरफॉर दिस केस विल बी टेकन अप। आई होप आप सबको ये पार्ट समझ आया हो। देखो, ये वीडियो आप 2-3 बार आपको देखनी पड़ेगी सो एज टू लर्न ऑल द सेक्शंस। ऑलराइट,
ये सेक्शंस अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, फॉर इंस्टेंस रिलीजन की बात हो रही है, तो आपको सब सेक्शंस पता होने चाहिए। देखो एक एक लाइन के हैं, दे आर नॉट लेंदी कि आपको भूल जाओ कोई भी चीज। इफ यू वॉच दिस वीडियो ट्वाइस थ्राइस, आई गारंटी आपको ये चीज याद हो जाएगी। नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दो। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर लर्न करो ऐप, इसमें सब वीडियोस लाइंड अप हैं पार्ट वाइज, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नोट्स भी ऐप में दिए हुए हैं, एक बार जाकर चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल अभी का भी ज्वाइन कर लो, उसके अंदर सारी अपडेट्स आती रहेंगी आपके पास। फिर ये लर्न करो ऐप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अभी के अभी जाकर चेक कर सकते हो। कोई भी रिव्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, आई विल सी टू इट। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस super soon, bye bye, take care।